No, Anyone? sir. Okay, that's good. So today we will be continuing with gender, religion, and caste, and I hope that you must have went through it, right? So, Yes, sir. isn't it? सही कह रहा Yes, हूँ sir. आप लोगों ने पढ़ाई की है. Okay, Yes, sir. good. So when it comes to communalism, right? In previous class I must have taught you this. So how will you explain it? What overall communalism is all about? कम्युनलिज्म जो है क्या है एंड इसको जो है कम्युनलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर द पर्टिकुलर सोसाइटी इज कम्युनल और नॉट. अर्नव सिंह हैज रेज्ड हिज हैंड. यस अर्नव, Yes, sir. Yes, एक्सप्लेन sir. कर. हाँ. Uh, Sir, communalism it is seen to prevail when religion is considered as the basis of the nation. This means that in case of nationality, we are also including religion as a factor, and it becomes even more acute when we are focusing on when we are exclusively giving domination to one religion. That is, considering that one religion is superior to another. Its features can be, or the basic rules which are followed by which are there in communal politics or communalism is that it is considered that the people of a single religion are considered as a single community only, and they will have all the same aspirations. If different aspirations are seen, then that situation would be considered irrelevant. Also, the thing is that the people from different religions will not be considered as a single unit, and they can never form any single association. This means that they cannot be considered as a single community, nor they would have any single type of aspirations. uh, Another point can be uh, that in case of communalism, we are seeing in case of communalism, in case of religion, there is also, it can also be identified by superiority of one religion over the another one. And there was one statement which I am remembering, that if different religions, the people of different religions, they are coming together, and they are acting as a single community, then the communal people will consider it as something irrelevant and immaterial. Said this much. Okay, very good. बहुत अच्छा. So is there any button for clapping? यहाँ पे कुछ है ऐसा? I'm not aware of. So No, sir. No, sir. so okay, a virtual clap from my end. I hope all of you will clap for Arnab. Very good, Arnab. Thank you, sir. Now the next one. Okay, done. We are done with this. Now the next question is that communalism can take various forms in politics, right? What are those forms? Communalism can take various forms in politics. What are those forms? Yes, raise your hand. Who will answer this? Yupi has left the meeting. Okay. Manoj Kumar. Yes, Manoj Kumar. Switch on Yes, your sir. camera and speak. Okay, sir. Sir, मैं visible हूँ. You are not visible, Manoj. Yes, right So now you now? are visible. You are visible now, Manoj. Yes, sir. सर मैं थोड़ा मिक्स में बता सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश यूज करके. Yes, Right. yes, you can. Yes, sir. सर But make sure कम्युनिज्म के that you हमने are कुछ. make sure that you are looking in front of camera, right? Okay, sir. Don't say here and there. Whatever you know, just Okay, speak sir. out. यस सर. सर कम्युनलिज्म में हमने सर कुछ ऐसे कुछ फॉर्म्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि कुछ हम अभी कॉमन लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में हम कम्युनलिज्म को किसी ना किसी तरीके से फॉलो करते हैं, जिसमें हम अगर
कोई भी स्टीरियोटाइप, खासकर जो पुराने पीढ़ी के लोग होते हैं, उनमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम कम्युनिज्म को फॉलो करते आ रहे हैं। और सर इसका सेकंड फॉर्म में हमने ये देखा था कि कम्युनिज्म एक तरीके से जो मेजॉरिटी पीपल हैं, जो किसी एरिया में जो मेजॉरिटी में है, उनके लिए ये मेजॉरिटेरियन की फॉर्म ले लेता है। मतलब जहाँ पे एक तरीके से उनकी चले, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल की बात करी, जैसे श्रीलंका में हम मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वहाँ पे सिन्हाल जो है, वहाँ के बाकी जो इंडियन तमिल्स या फिर श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनके ऊपर मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है, जिससे ताकि सिर्फ उन्हीं का वहाँ पे प्रॉफिट हो, ना कि पूरी ओवरऑल कंट्री का, सिर्फ मेजोरिटी का ही प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है। और सर हमने फिर थर्ड फॉर्म में ये देखा था कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं जो एक तरीके से किसी अपने सैक्रेड फ्लैग या फिर रिलीजियस फ्लैग को यूज़ करके अपनी वोटिंग लोगों से वोट मांगने की कोशिश करती है। अच्छा, और इसका एक्सट्रीम फॉर्म क्या है? यस सर। सर इसके एक्सट्रीम फॉर्म में हम देखे थे, कुछ इसके अगली मूवमेंट्स भी हो जाते हैं। मतलब अ, सर लोगों में अगर कम्युनिज्म धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लग गया, तो एक तरीके से कुछ अगली रिजल्ट भी आना शुरू कर देते हैं कि लोग इसके अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे, तो हम इसका एक्सट्रीम फॉर्म में रिवॉल्ट वगैरह दे सकते हैं। चलो, वेरी गुड। मनोज ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड। A clap from my end for Manoj. Everyone out there, a little clap means yes, yes, very good. बहुत अच्छा मनोज। ठीक है। मैंने दो बच्चों को आइडेंटिफाई किया है, अर्नव एंड मनोज, जो कि पढ़ रहे हैं और आंसर देने के इच्छुक भी हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप में से कितने लोग आंसर दे पाते हैं। आई मस्ट हैव taught you secularism, right? That one of यस the सर। best way to counter communalism is secularism. What is secularism? Please Ram. Apart from Arnav and Manoj, I would like anyone else to raise his or her hand. I know that these two people, Manoj and Arnav, will give answer, but I want to see other people also. Yukti is there in this meeting? Yukti नहीं है। Okay. और कौन है? जैद सौरन। जैद, यस सर। आपको आंसर मालूम है इसका? सर एग्जाम में आ गए। ओके। फिर उसके बाद आपके हैं नमन मित्तल। सॉरी सर, एग्जाम चल रहे थे इसलिए पढ़ नहीं पाया। मैं आगे से जरूर दूंगा आंसर। ओके। फिर उसके बाद आपके हैं यशवी शर्मा। यशवी शर्मा, are you there in this meeting? Yashvi, her mic is not working. Okay, so sad. ज्योत्सना कुमारी, यस सर। आंसर दो। सर सेक्युलर सर मैं थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ, मेरे को पूरा तो नहीं पता लेकिन सर मैं ट्राई करती हूँ कि Yes. सर सेक्युलरिज्म ये चीज ये एक विश्वास है जो सरकार देती है कि जो रिलीजन है वो एजुकेशन में या गवर्नमेंट में नहीं लाया जाएगा। ओके। नहीं ज्योत्सना, यू आर नॉट करेक्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। इंतजार चौधरी, इंतजार चौधरी क्लास में है? इंतजार चौधरी। दीक्षा गौतम, दीक्षा गौतम। युक्ति वार्षिणे। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं।
मैं अगर नाम बुला रहा हूँ तो आपको येस और नो बोलना पड़ेगा, है ना? याद है नहीं है वो बात की बात है। अगर नहीं याद है तो बताओ सर नहीं याद हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। याद है तो भी बता दो, बट बोलना ज़रूरी है। तो आई वुड लाइक टू आस्क, whom should I ask? Okay, wait. Diksha Gautam has left the meeting. Very good. Kavish Chaudhary. Kavish Chaudhary, are you there? मानवी पनवर, यस सर। पढ़ाई किया है आपने मानवी? यस सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, वेरी गुड मानवी। यस सर। सर सेकुलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है ना तो वो किसी रिलीजन से कनेक्ट होती है, ना ही जैसे चर्च या अलग अलग रिलीजन से कनेक्ट हो। ठीक है, और सर यही पता है। और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करिए आप अच्छा आंसर कर सकते हैं। ओके सर। देवांश पतवल, ऋषभ सिंह, यस सर। सर आप सेक्युलरिज्म बताओ। सेकुलरिज्म सर मतलब सर कोई भी स्टेट होता है सर, उसका ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होता। जैसे सर इंडिया है सर, इंडिया के अंदर कोई इंडिया अपने आप को कोई पर्टिकुलर रिलीजन की कंट्री नहीं मानता। जैसे कि सर ओके, सऊदी। ऋषभ स्विच ऑन योर कैमरा। सर आई डोंट हैव वेब कैम सर। अच्छा ठीक है, बोलो, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सर इस तरीके से आ रहा होगा सर। नेक्स्ट टाइम इसको ठीक कर लेना, बताओ। सर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। जैसे कि सर काफ़ी सारी सऊदी कंट्रीज होती है सर, वो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज मानती है। बट सर इंडिया के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है सर, वो सारे रिलीजन को रिकॉग्नाइज करता है। और सर इंटरफेयर नहीं करता रिलीजन के अंदर। बट सर कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि अनटचेबिलिटी वगैरह, तो सर वहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ता बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो ऋषभ आप? है। सर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। वेरी गुड। तो ऋषभ एक अच्छा बच्चा है, पता लगा मुझे, ठीक है? आई थिंक यू आर न्यू एडमिशन, राइट ऋषभ? यस सर। ठीक। और कौन चलो ठीक है, ऋषभ ने एक अच्छा आंसर दिया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जेंडर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो जेंडर इशू को रिजॉल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका आप में से कौन बताएगा मुझे? ये जरा दीक्षा, आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है? दिस इज नॉट गुड। देयर इज नो नीड टू एस्केप। आप भागने से कोई फायदा नहीं है। मीटिंग लेफ्ट करो, मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू आंसर यू कैन से सर आई विल नॉट आंसर। Yes, how we can resolve the issue of that there is some network issue. Okay, Diksha, I can understand. So, how we will solve problem of women? What are the ways? Can any one of you suggest me a way through which we can resolve this issue, or can we go for a empowerment of women? Naman Mittal, अर्नब, मनोज, नमन मित्तल बताएंगे। यस नमन। Sir, to empower women, we can simply do just increase the seats for women. जैसे अभी अच्छा। इंडिया लोकसभा वगैरह में 1/3 सीट होती है वुमेन के लिए, अगर हम उसको थोड़ा इंक्रीज कर दे तो हम जो वुमेन है वेट नमन, 1/3 सीट रिजर्व होती है विमेन के लिए लोकसभा में? आर यू श्योर? यस सर। नमन, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? नहीं है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में 1/3 सीट रिजर्व है। चलो अच्छी बात है, फिर भी ट्राई कर रहे हो, ये अच्छी ओके बात है। सर। और आगे बताओ। और बोलो, क्या जानते हो? सर इतना ही। तो बेसिकली देखा जाए, आप में से 2-3 बच्चों को अगर मैं छोड़ दूं
तो बाकी बच्चे बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। उनको पढ़ाई से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है। हो सकता है आप सोशल में ऐसा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चा है कृष्णा करके, वो कहाँ है? जो बीच में क्लास में बोलते रहते हैं, कहाँ है वो? कृष वर्मा, आप हो? Yes, sir. Krish Verma, how we can resolve problem of women? Sir, we can resolve the problem by empowering a woman in the political area. We can empower the women by giving them some reservation, because in Lok Sabha there is only 14% of representation of women, Very good. and in our country there are, Can you switch on your camera, Krish? Yes. Very good. but in our country there are almost 50% of women population. So, and we should implement the laws like Immigration Act on the ground, because they are not implemented properly. And I we can should, recall you, Krish. I think तुम कृष वर्मा, जैद और 2-3 बच्चे और थे, एक सेपरेट बैच था, राइट? yes sir, Riser B1. ठीक है, वेरी गुड, आई कैन रिकॉग्नाइज यू नाउ। चलो और बताओ कुछ पॉइंट कृष। सर, हमें उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर जो वुमेन की लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है मैन से। करीब 13 to 15% का डिफरेंस आता है उन दोनों के लिटरेसी रेट में। तो हमें उसे भी बढ़ाना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ। ओके, और सर आगे नहीं आता। नेक्स्ट टाइम पढ़ के आओगे कृष, राइट? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो ठीक है, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। गुड टू सी दिस कि आप लोग अब थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूव कर रहे हो, आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। पहले क्लास से थोड़ा सा बेहतरीन हुआ है रिस्पॉन्स, बट आई होप कि आप सभी को रिस्पॉन्स करना चाहिए इफ़ यू ऑल आर सिटिंग ओवर हियर। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करने आए हो यहाँ बैठे हो, ठीक है, कि 1.5 घंटा सुनना है, सर जो बोलेंगे सुनेंगे, फिर लेक्चर बंद करेंगे, फिर अपना काम करने लगेंगे, ठीक है। इफ वी ऑल आर सिटिंग ओवर हियर, वी आर सिटिंग ओवर हियर फॉर अ पर्पस। व्हाट इज आवर पर्पस? आवर पर्पस इज टू क्रैक, माय पर्पस पर्टिकुलरली इज टू मेक यू क्रैक NTSC फॉर माय एंड, राइट? और आपका ओवरऑल पर्पस क्या है? आपका ओवरऑल पर्पस ये है कि आपको NTSC एज अ गोल, एज एन ऑब्जेक्टिव, यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड टू पुट योर गोल, यू नीड टू डिसाइड योर गोल करके उसको अचीव करना है। As a student, you should be aware, you should be very cautious for your board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है, अच्छे मार्क्स ले आने हैं, NTSC कंपटीशन जो है ब्रेक करना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी, ठीक है। और वो स्टडी कब होगा? जब आप मेरे लेक्चर के अलावा आप खुद से पढ़ोगे। मेरे लेक्चर से तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको तो मिल ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो वो ज्ञान थोड़ा और क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, देख कर, बोल कर, सुन कर और लिख कर। तो सारे तरीके अपनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। टाइम पास करना है तो जो है कि आप अदर मीन्स खोजो टाइम पास के लिए, ये मीन मत खोजो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं इस समय पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। एक जो कॉम्पिटिटर है वो जो है कि देखता है कि भाई लोग, इतने सारे लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। हाँ, मेहनत इतना नहीं करना है कि प्रेशर पड़े बहुत ज़्यादा, दिमाग का प्रेशर नहीं लेना है, खुशी खुशी करना है, हंसते गालते। अब मैं आपको जब मैं समझाता हूँ आपका कंटेंट, तो आपका कंटेंट ऐसे नहीं समझाता हूँ कि जो किताब में लिखा है उसी को बोल दिए, डिक्टेट कर दिए और ख़त्म कर दिए वही कहानी। मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। Being a teacher of a social science, I try to explore the content, the boundary of your NCERT, ठीक है। तो अब मैं जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, that means I want to make you aware the concept thoroughly। अब वो थॉरली आपको तब आएगा जब आपने अच्छे से सुना, फिर उसके बाद जाके खुद से पढ़ा। जब तक खुद से वाली बात नहीं आएगी, then this is a damn sure that no one will be there who can make you understand thing holistically। मुझे खुद मेरे टीचर ने बस खाली मुझे बताया है कि ऐसे नहीं ऐसे करो,
ठीक है। उसके बाद मैंने जब खुद से पढ़ाई की और टीचर के जो भी उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिए थे उसको फॉलो किया, तब मुझे लगा कि नहीं, तब मुझे फ़ायदा होना शुरू हुआ एक्चुअली। जब तक मैंने खुद से स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, जब तक मैंने खुद से नहीं पढ़ा, तब तक मुझे लगता था कि जो है मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं डेवलप होता था। अब मैं जब खुद से पढ़ लेता हूँ तो मुझे जो है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यार मैंने पढ़ा है, आई न्यू दिस, हमने 2-3 बुक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो जो है डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो तब होगा जब आप सेल्फ करोगे, सेल्फ स्टडी। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, और हम लोग आज कंटेंट को आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So this image, okay, we will come back to the image once we will complete this chapter. Right. Today we will start with caste and politics. Right. क्या start करेंगे? Caste and politics. One note. Right. कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी एक ऐसा चैप्टर है, जो मैं ये आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, बहुत मुश्किल बड़ा भरा चैप्टर है, ठीक है। लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस पे मोर और लेस देना कम चाहते हैं, ठीक है। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड आई एम अ टीचर, so I will definitely try to make you aware the things which are going on from my end, whatever I know. तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स में you will find that वेदों में, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। सर क्या क्या हो गया? Who is he? सर कृष्णा। Krishna, where were you? समय भूल गया था आधा मिनट। I think that you are aware of that initially, in the initial 13-14 minutes or 15 minutes, sir will ask question, and I am not prepared, and I should not join this session. नो सर। हाँ सर, सर मैं आपको उसके मालूम, लिए आप, सर मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, आप जो है अवेलेबल नहीं रहते हैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट। सर मेरे टेस्ट चल रहे हैं सर, मेरी 8 तारीख तक सर, अभी आया तो था सर। कौन सा टेस्ट है जो कि 15 मिनट में ही खत्म होता है? सर 15 मिनट में नहीं सर, पीटी टेस्ट चल रहे हैं ना सर, स्कूल से आया था सर, वहाँ पे रहना पड़ता है ना सर, पापा टीचर हैं सर। हाँ, वो हाँ। पेपर तो सर जल्दी खत्म हो जाता है, पर सर घर पे मैं अकेले नहीं आता ना सर, पापा लेके आते, तो वहाँ पे मैं 4-5 घंटे एक्स्ट्रा रहता हूँ नॉर्मल बच्चों से। अच्छा, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा करते हो आप नॉर्मल बच्चों से? ये सर वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे सर फिर पढ़ता हूँ, वहाँ हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ता है ना। अच्छा, चलो ये बताओ, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म क्या होता है? सर मेरे को नहीं पता सर, मैं पढ़ नहीं पाया सर इस वजह से। क्यों? तो आप तो कह रहे हो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हो। सर वहाँ पे सर पेपर का, सर कल भी पेपर है ना। किस चीज़ का पेपर था? सर आज हिंदी का था। हिंदी का था, और उसके पहले? सर उससे पहले मैथ का था। मैथ्स का था। तो मैथ्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी? सर मैथ्स में सर जो आया था सर, वो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का था। अच्छा, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स, आप यही बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। और अब क्या है, कल क्या है? सर कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, और सर परसों संस्कृत का, और उसके बाद एसएसटी का। आपके पेरेंट्स से अगर ये बात पूछी जाएगी तो वो इस बात को जरूर अग्री करेंगे कि कृष्णा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर पूछ लो। ठीक, चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, राइट। सो कास्ट एंड पॉलिटिक्स में मैं आपको क्या बता रहा था, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, पहले क्लास हुआ करता था, फिर लेटर वैदिक पीरियड में किसमें वो चेंज हो गया, कास्ट में, ठीक है। किसमें? कास्ट। तो कास्ट में 4 कास्ट जनरली देखे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र। ठीक है, अब ये 4 क्या है, डिमार्केशन है, 4 डिवीजन देखा गया है। ठीक है, तो अब इस 4 डिवीजन में आप देखोगे ब्राह्मण्स वेर एट द टॉप, मीन देयर वाज सम यू नो some job profile actually, kind of, you can understand, which were performed by these different castes. Brahmin, they used to be priest, पढ़ाने लिखाने और फिर साथ ही साथ आपका पूजा पाठ ये कराते थे। क्षत्रिय, they used to be warriors. वैश्य, they used to be traders. शूद्र, they used to serve out these first, second and third. ठीक है, शूद्र में भी आप एक अलग देखोगे, अति शूद्र। शूद्र में भी एक अति शूद्र आते हैं, जिसको कि बनाया गया था, जिसको कि इन्होंने रेफर कर दिया ओवरऑल। देखो ये सारा सिस्टम जो क्रिएट किया गया वो ब्राह्मण्स का है। ठीक है, अति शूद्र को क्या कहा गया, इन्हीं को अनटचेबल्स कहा गया। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा गया, अनटचेबल्स। और ये जो अनटचेबिलिटी थी ये सिंस वैदिक पीरियड से ही प्रैक्टिस होती थी इंडिया में। ठीक, अब यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक माइंडसेट है दैट जो कुछ जॉब्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि डिमार्केटेड हैं कि ये जॉब ये पर्टिकुलर कास्ट करेंगे, फिर ये जॉब ये पर्टिकुलर कास्ट एंड दिस एंड सो ऑन। इसके वजह से क्या हुआ, आज के डेट में हम पढ़ते हैं दैट वी हैव अ रिलीजन विद इन अ रिलीजन, राइट। और इसका जो है बखूबी फायदा उठाया था ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज ब्रिटिशर्स ने आफ्टर 1858। तो ये अनटचेबिलिटी का बखूबी फायदा उठाया। और दलित्स का जो एक इशू है, एक जो है बर्निंग इशू है, आज के डेट में भी अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में इसको खूब इस्तेमाल करते हैं, लोगों को क्या करने के लिए, मोबिलाइज करने, संगठित करने के लिए। ठीक है, you will find that different politicians are very much concerned about Dalits. कुछ भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत बात अगर जनरल कास्ट में अगर आप देखो तो उसको उतना ज़्यादा बर्निंग इशू नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसको उतना ज़्यादा बर्निंग इशू नहीं बनाएंगे बिकॉज जनरल है। ठीक है, दलित इज समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। अगर जरा सा भी बात हुई तो दे विल कम एंड विल डू पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट अबाउट कि उनको जो है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वो जो चाहते हैं, ठीक है, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, अपने पॉलिटिक्स को पूरा करेंगे। पॉलिटिक्स आई थिंक यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट मूवीज ऑल्सो। ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लोर करके इसको बताना ज़रूरी है। आप लोग मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो मूवीज़ क्या होती हैं, एक तरीके से सोसाइटी की मोर और लेस बहुत सारी मूवियाँ ऐसी होती हैं, आपको पिक करना होगा कि कौन सी मूवी है। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो वो भी देखो आप। कुछ ऐसे मूवीज़ आते हैं जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ज़्यादातर मूवीज़ एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें दिखाया जाता है कैसे पॉलिटिशियन यूज अनफेयर मीन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी इन पावर। और उनमें से दलित एक सबसे बड़ा इशू। You will find some politicians they will directly will say that they are they are among the Dalits. They are there to protect Dalits. They are the only one to protect Dalits. Otherwise, no one will protect them. But different politicians, अब ये देखो, political party 1, 2, 3, 4, सबका यही मानना है, सबकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं यही रहेगी कि they will protect Dalits. फिर कहेंगे they will protect tribals. ठीक है, tribals. They will protect OBCs. They will protect women. Right? ये सबका इशू है, ये तो कॉमन है। इसी को बंच करके वो क्या बनाते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वोट बैंक। ठीक है, when you will learn political parties you will definitely find all these things. मैं आपको जरूर वहाँ पे बताऊंगा। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी तो सीधे सीधे इन्हीं को क्या करेंगी, इन्हीं के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मोर और लेस अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज में आप ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब ब्राह्मण्स में यहाँ पे था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें क्या हुआ करता था दैट ब्राह्मण्स कम्युनिटी के जो लोग थे वो आपस में जो है कि शादी विवाह और खाना पीना आपस में ही होता था। वो क्षत्रिय में नहीं जाते थे। हालांकि क्षत्रिय तक तो ठीक था, वो ज़्यादा था, क्षत्रिय बुलाते थे तो फिर ब्राह्मण जाया करते थे और वहाँ पे खान पान हो जाता था। ठीक है, ओनली फॉर क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय की कम्युनिटी अलग हुआ करती थी, उनकी अपनी शादी विवाह और जो है सारा रस्म रिवाज विद इन क्षत्रिय कम्युनिटी हुआ करती थी। और क्षत्रिय कास्ट कहा जाए, वैश्य का अपना सेपरेट, शूद्र का अपना सेपरेट।
तो ये क्या है, सीधे सीधे डिमार्केशन है, एक लाइन है। गांव में भी अगर आप जाओगे ना, अगर आप में से कोई गांव से बिलोंग करता होगा, तो यू विल फाइंड कि ब्राह्मण एक जगह रह रहे हैं, क्षत्रिय एक जगह रह रहे हैं, शूद्र एक सोशल एक्सक्लूजन है तो बाहर रहेंगे, आउटस्कर्ट में आप उनको देखते हैं, अति शूद्र, ठीक है। शूद्र जो है बीच में रह सकते हैं क्योंकि इनको सर्व करना होता है इन लोगों को, ठीक है। वैश्य वो भी अंदर रहेंगे। आपने क्या कभी देखा है ऐसा? यस सर, देखा है। Yes, sir. ठीक है, तो एक साथ रहते हैं सब। तो ये जो है कि यहाँ पे क्या है, क्लियर डिमार्केशन दिखाई दे रहा है। इंडिया में इस चीज को रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि अनटचेबिलिटी अगर आपने प्रैक्टिस किया, देन यू नो इट विल काउंटेड एज अ extreme exploitation of a human being. You will face rigorous imprisonment, right? तो आपको ये अनटचेबिलिटी नहीं, आर्टिकल 17 आपको मालूम होगा, आई होप सभी को, राइट? आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी इन इंडिया। यस सर। ठीक है, फिर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लिया है तो आई होप आप जानते हैं सनातनीज, ठीक है, वो यूज्ड टू फॉलो दिस, और महात्मा गांधी ने इनको हरिजन बुलाया। तो आज के डेट में ड्यू टू अर्बनाइजेशन जब हुआ, तो व्हाट हैपेंड कि ये जो ओवरऑल कास्टिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश होता हुआ दिखा, ठीक है। आज के डेट में यू विल नॉट बी अवेयर इफ यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया दैट टू whom you are talking with, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट में बैठे हो, बैठ के खाना खा रहे हो, आपके बगल में आपके सीट पे कौन बैठ के खाना खा रहा है, यू डोंट नो, इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ हु हैव कुक्ड दिस फूड। खाना किसने बनाया आपको ये भी नहीं मालूम है, yes, क्या वो दलित बनाया हो, शूद्र बनाया हो, कुछ भी बनाया। ठीक है, ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली दे यूज्ड टू बी वेरी कॉशियस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट आज के दिन में ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो चुका है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। सर ये अच्छी बात है बुरी बात? तो मुझे एक्सप्लेन करने दो, जब मैं एक्सप्लेन कर लूँ तब आप पूछना कुछ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, अधिक बहुत बड़े पैमाने पे हो भी चुका है, बट अभी भी हम कास्टिज्म पढ़ रहे हैं। मतलब यदि स्ट्रक्चर ये पूरी तरीके से टूटा नहीं। हो सकता है जॉब प्रोफाइल में आज के डेट में क्षत्रिय भी जॉब में हैं, वैश्य भी जो है जॉब कर रहे हैं, मतलब जॉब जैसे कि मान लो टीचिंग का जॉब है तो वह क्षत्रिय भी कर लेते हैं, वैश्य भी कर लेते हैं, शूद्र भी, अति शूद्र भी, ठीक है। ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स भी जो है कि दे बिकम अ सोल्जर, मिलिट्री में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जॉब प्रोफाइल था वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब कोई सा भी काम अब आज के डेट में कर सकता है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो अभी भी इसी जो है प्रकार है। लोग अभी भी बिलीव तो करते हैं, पब्लिक डोमेन में कहें या ना कहें वो देखा जाता है, पर सरकार ऐसा मानती है आई बिलीव कि ये लोगों के अंदर है। अदरवाइज ये जो रिजर्वेशन है इसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की होती पॉलिटिकल पार्टी, बट वो नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट स्टिल दिस इज बिग प्रैक्टिस। और रिजर्वेशन होता है तो जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम। हालांकि अब तो रिजर्वेशन इनको भी, ब्राह्मण को भी मिल रही है, क्षत्रिय जनरल को कहा जाए 10% मिल रहा है, बट स्टिल ठीक है। अब ये चीज़ें अभी भी क्या है पब्लिक डोमेन में देखी जाती हैं। लोकसभा में देखो तो 84 सीट्स एससीज के लिए रिजर्व है एंड 47 सीट किसके लिए, एसटीज के लिए रिजर्व, ठीक है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो पहले से प्रिविलेज थे आज कहीं ना कहीं वो अभी भी प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। और जो है पहले से अदर प्रिविलेज थे आज भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो वी वांट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे सभी के पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है? I think there is a sound coming out. I don't know from where it's coming out. Please mute yourself, everyone out there. ठीक है, तो पॉलिटिक्स में अब देखोगे कि अब ये पॉलिटिक्स में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो before going ahead, I would like to, I would like someone to read it out so that we can proceed further. Just raise your hand for reading out. कौन पढ़ना चाहेगा? रेज योर हैंड।
अर्नव, हाँ अर्नव पढ़ो। Yes, sir. Caste and politics. We have seen two instances of the expression of social division in the arena of politics, one largely positive and another largely negative. Let us turn to our final case, that of caste and politics, that has both positive and negative aspects. Caste inequalities. Unlike gender and religion, caste division is special to India. All societies, अंडरलाइन। okay, sir. All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. In most societies, occupations are passed on from one generation to another. Caste system is an extreme form of this. What makes it different from other societies is that in this system, hereditary occupational division was अंडरलाइन। sanctioned by rituals. Yes, sir. Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group, and did not eat. अंडरलाइन। Okay, sir. And did not eat with members from other caste groups. ये सब क्या मैंने आप लोगों को बता दिया अभी? Yes, sir. यस सर बता दिया। ठीक, yes, we may continue. Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups. They were subjected to the inhuman practice of untouchability, about which we have studied in class 9. This is why political leaders and social reformers अंडरलाइन। okay, sir. Reformers like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar, and Periyar Ramaswamy Nakar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. Partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes, castes and caste system in modern India have undergone great changes. With economic development, large-scale urbanization, अंडरलाइन। yes, sir, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlords in villages, the old notions of caste hierarchy are breaking down. Now, most of times in urban areas, it doesn't matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant. अंडरलाइन। Yes, sir. The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundations of policies to reverse the injustices of the caste system. If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. Yet caste has not disappeared from contemporary India. अंडरलाइन। Okay, sir. Some of the older aspects of caste have persisted. Even now, most people marry within their own caste or tribe. Wait, so देखो, how we can say that casteism is still prevailing in India? So this is the very first point. Okay, that marriage is still going on within the caste. Okay, next क्या है? Untouchability has not ended completely, Underline. despite constitutional prohibition. Next. Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. Underline. So did I told you this one? क्या मैंने बताया कि जो उनको प्रिविलेज पहले से मिली हुई है उनको आज भी प्रिविलेज मिल रही है. प्रिविलेज इन द सेंस कि Yes, सोशल, sir. इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल. Yes, sir. राइट. अंडरलाइन कर दो. कंटिन्यू. That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. Castes continue to be closely linked to the economic status. अब आते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट. ठीक है. अब देखो ये जो टू टर्म्स है अब तो सीबीएसई ने ये हटा दिया है. अदरवाइज होता क्या था बच्चों कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट जो टर्म पढ़ोगे लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन था इसमें कि ये कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है. ठीक है. तो लेट मी टेल यू कि
जब आप पढ़ते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, राइट, क्या पढ़ते हैं? कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये भी टर्म पढ़ोगे, पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट में देखोगे हाउ, आप ये कहोगे कि पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियंस, हाउ पॉलिटिशियंस आर यूजिंग कास्ट इन देयर पॉलिटिक्स। और फिर उसके बाद पढ़ोगे हाउ, अब पॉलिटिक्स इन कास्ट का क्या मतलब है? हाउ कास्ट आर यूजिंग, आर डूइंग, कमिंग टुगेदर एंड डूइंग पॉलिटिक्स। How castes are coming together and doing politics. You will learn this one in this particular segment. And in this segment, you will learn how different politicians are doing politics on the basis of caste. ये समझ में आ रही है दोनों बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कैसे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हैं कास्ट के बेसिस पे, इसमें ये आएगा। पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कैसे अलग अलग कास्ट पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स में रहने के लिए क्या क्या फंडे वो जो है अपनाते हैं। Because it's all about power. Why politicians are using politics in caste? Because they want to be in power. Why different castes are doing politics? Because they also want power. Right? Because ultimately क्या है? It's all about पावर। power. ठीक है, सभी को पावर चाहिए। मैंने इस पे बताया है पावर के ऊपर, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया पिछले लेक्चर में, व्हाट इज पावर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, the three main parts. यस सर, Yes, sir. आपने बताया था। Yes, sir. सर कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है या बुरा है? अभी तो ये पढ़ाया ही नहीं, तो इससे ये कंफ्यूजन में कैसे आ जाएंगे? ठीक है, अच्छा, बिफोर दिस मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अब इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, अगर उसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो उससे पूछ लो, अदरवाइज मैं कास्ट इन पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगा। नहीं, कृष्णा तुम बीच में कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, जब मैं कंप्लीट कर लूँ तब पूछना, राइट? यस सर। पूछ क्या रहे थे? सर तब जब आपने रोका था सर, तब मैंने बोला था इस सर कास्ट सिस्टम जो है, जो आपने बताया था कोलैप्स कर रहा है, वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा, अच्छा है और बुरा है इन द सेंस कि ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी में डिवीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नो सर, नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब क्या कास्टेज में सोसाइटी को डिवाइड करता है? Yes, sir. यस सर, करता है। करता है। कृष्णा आप बोल रहे हो ना इसमें? यस सर। अच्छा, तो अब बताओ, आप ये एक तरफ ये कहते हो कि डिवीजन नहीं होना चाहिए, और एक तरफ ये भी कह रहे हो, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि कास्टिज्म जो है डिवाइड करता है। अब बताओ कि कास्टिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। अगर कृष्णा यू टुक लॉट ऑफ टाइम, आपने बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है। सो you know, if you are learning out several things, I think you are mature enough, you are intelligent enough to understand what should be done and what should not be done. Okay, I hope this much is clear. Right, now let us move and start this caste in politics. और किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सर डाउट नहीं है, लेकिन डिस्कशन करना है सर, शायद वो क्लास के लास्ट में थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। सो कास्ट इन पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिशियंस दे विल यूज कास्ट इन ऑर्डर टू गेन पावर, राइट? तो कास्टिज में एक देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो आप देखोगे कि दे यूज मींस पीपल यूज टू बिलीव दैट इन विद इन आवर रिलीजन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रूथ एंड वी नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। और इसे देखा जाए तो मैंने बता दिया इट इज़ अ रिलीजन विद इन अ रिलीजन, और कास्टिज्म का एक बहुत बढ़िया उपयोग होता है पॉलिटिक्स में। अब देखो कैसे होता है,
सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है, दिस वन इज एन एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई होप यू आर अवेयर ऑफ, राइट? एक Yes. कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इसका सर्वे कराएंगे। दे विल लुक आफ्टर कास्ट, हाउ मेनी कास्ट आर ओवर हियर, ठीक है? देखेंगे कि कास्ट 1, कास्ट सी, लेट मी राइट सी ओवर हियर, C1, C2, C3, C4, देखेंगे मेजॉरिटी में कौन सा है। सपोज C4 मेजॉरिटी में, ठीक है, तो बस उनका कैंडिडेट उसी C4 से होगा। कैंडिडेट कहाँ से होगा? उसी C4 से होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर C4 हो गए। ऐसा नहीं है C1, C2, C3 वोट देने नहीं जाएंगे, बट मेजॉरिटी कौन है? C4। so they will use this survey data and they will make their representative from this particular caste, which is from this C4 से class, right? एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे और दैट पर्सन विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव, बन सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वोट ही और शी हैज एक्वायर्ड, ठीक है? तो ये अब जब गवर्नमेंट भी बन जाती है, जब वो गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं, सरकार जो बना लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन दे टुक इनटू कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट। उनके जो है कि उनके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में वो अलग अलग कास्ट को जरूर दिखाएंगे। वो देखो वेमेन का भी रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद कास्ट, शेड्यूल कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ओबीसीज का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब हर एक सेगमेंट का जो है रिप्रेजेंटेशन वो जरूर दिखाएंगे, ताकि कोई कास्ट ये ना समझे। और ये तो कास्ट की बात हुई, इवन रिलीजन भी देखा जाएगा, ठीक है? रिलीजन 1, रिलीजन 2 के लिए भी हो गए, ताकि वो एक होलिस्टिक जो है क्या हो, एक कंप्लीट कैबिनेट हो, एक कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग, हर कास्ट के लोग सोचें कि उनका कोई ना कोई जरूर है पावर में, उनके जाति का, उनके धर्म का, उनके भाषा का, ठीक है? तो गवर्नमेंट के लिए, अगर हम यहाँ पे तो कास्ट के लिए कंसर्न है, तो कास्ट के का यूटिलाइजेशन करती है गवर्नमेंट? हाँ, करती है। कास्टेज में है तभी तो ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद आप दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखो, ये तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट अगर आप जब पढ़ोगे, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, कास्ट सेंटीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, सपोर्ट लेने के लिए कास्ट सेंटीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम आप ही के बिरादरी के हैं, ठीक है? हम जो है आप ही के जाति के हैं, हमें जो वोट हमें वोट दो, ठीक है? जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, और जातिवाद तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है? तो इससे क्या होता है, उनको वोट मिलने लगता है, ठीक है? तो एक सीधे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आप सीधे कहते हैं कि भाई ये तो इसी कास्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद और क्या है, ये तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखो तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है कि पॉलिटिकल सपोर्ट मस्टर करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट एक्वायर करने की कोशिश की है, ठीक है? जैसे विमेन का, SC, ST, OBC और अदर रिलीजन जो है, इस सबके इश्यूज को क्या बनाएंगे, ठीक है? सबके इश्यूज को जो है कि बर्निंग इश्यूज की तरह ट्रीट करेंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे, ताकि इन सभी सेगमेंट से उनको क्या मिले, वोट मिले। पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे कास्टेज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनको और इनको हटाते हैं, इनको रखते हैं, हालांकि ये लोग भी उसी में कैटेगरी में आएंगे। तो अपने मैनिफेस्टो में, अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में इनके जो डेवलपमेंट की बात वो कुछ ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है? उन लोगों का जो है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस दिखाएंगे जो कि अच्छे से ट्रीट नहीं हुए हैं अभी तक, जो अपने आप को इन्फीरियर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं और लोग फील कर रहे हैं। और सर ये वोट बैंक पर भी डिपेंड करता है ना। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ा कि किस तरीके से कास्ट इन पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है? तो अब जब भी हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई कास्ट इन पॉलिटिक्स में हमेशा पॉलिटिशियन कास्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और कास्टिज्म बहुत एक अपने एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वी आर नॉट ट्रू एट द सेम टाइम। ऐसा भी नहीं है, पूरी तरीके से ये सच भी नहीं है, ठीक है? तो अब सच क्या है? सच ये है कि सपोज दिस इज अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4, राइट, इवन C5 यू कैन कंसिडर, दे ऑल आर ओवर हियर, राइट? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ C4 पे ही फोकस किया, सो देन दिस C1, C2, C3 एंड C5
they will look for any other what option. ठीक है, तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी मानती, इन्होंने सिर्फ C4 पे कंसिडर किया, C4 ने मान लो इनको वोट कर दिया, and these people, these communities, different caste, you know, they prefer someone else. Suppose they prefer P2. So in that situation, when they are all coming together, then they will form the majority, and whomsoever they will vote, that person will win the election. समझ में आ रही है बात? So rather than focusing on one caste, political parties will try to focus on all other castes. ठीक है, ऐसा नहीं है। अब मतलब ये क्या है, काउंटर आर्गुमेंट है जो अभी 3 आपने पढ़ा है ना पॉइंट, उसका ये काउंटर आर्गुमेंट है कि दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट ऑलवेज। और जब मैंने ये कह दिया, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कि C4 इज वोटिंग फॉर P1 सपोज, तो ऐसा नहीं है C4 सभी सारे C4 जितने हैं ऑल आर कमिंग एंड वोटिंग फॉर P1। अगर हमने ये टर्म पढ़ लिया वोट बैंक, इट मीन्स that majority of people from C4 are voting for P1, not all are voting for P1. ठीक है? Yes. यहाँ तक क्लियर है? और सर ये कॉन्स्टिट्यूशन भी तो गारंटी करता है ना सर, क्या कर? कि सर इक्वल और कि सर उनका भी मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, वो जहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे गारंटी है ही। वहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज में जो है क्या, अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज ये क्या करते हैं, दे विल लुक दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिजर्व। यहाँ पे इन्होंने सर्वे किया दैट C4 के पीपल सपोज दलित हैं, ठीक है, दलित यहाँ पे मेजोरिटी में है। सो व्हाट दे विल डू, देयर आर मल्टी पार्टी इन इंडिया, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल लाइक टू बी इन पावर। तो यहाँ पे भी उनको अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होगा। सो दे विल सी दैट C4 आर इन मेजोरिटी, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, P1, P2, P3, P4 सब अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे, और सभी क्या होंगे, दलित होंगे। यस सर, दलित सभी चालाक हैं, ठीक है। तो अब ये दलित भी क्या करें, अब इनका वोट क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये लोग अगर इकट्ठे होकर किसी और को दे दिए तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब सबको लेके चल रहा है, ऐसा नहीं कि अब जो है कि ये आर्ग्यूमेंट दो कि सब कास्ट जो है पॉलिटिक्स में सब कास्ट ही कास्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे फैक्ट्स नहीं हैं जो इस बात को क्या करते हैं, डिनाई भी करते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये एकदम एक्सट्रीमली ट्रू है कि इसे जो है कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप देखोगे इंडिया में हाफ ऑफ द MP और MLA क्या करते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, दे लूज इलेक्शन। आपने 9th में भी पढ़ लिया था। यस सर, यस सर, हाफ ऑफ द MP एंड MLA लूज इलेक्शन। उसीलिए हम कहते हैं इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, ठीक है, याद करो अगर पढ़ा है तो। यस सर, यही पढ़ा था क्यों, Yes, sir, पढ़ा है। ठीक है, तो MP MLA, हाँ, तो MP MLA इंडिया यहाँ जो है कि इंडिया में हाफ ऑफ MP MLA इलेक्शन लूज कर जाते हैं। अगर सभी कास्ट मिलकर, मतलब ये C4 ही मिलके, या अगर कास्टिज्म इतना ही स्ट्रांग है तो वो MP MLA को हारना नहीं चाहिए, बट वो हार जाते हैं। सो हम इससे क्या समझ पाते हैं कि यस, कास्टिज्म इज देयर इन पॉलिटिक्स, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट इट इज इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म। And in India, you will find that most of the voters, they used to vote on caste line, on religious line, on community line. और ऐसा नहीं है कि सभी को जो है कास्ट एक ही तरीके से सोचते हैं, सब कास्ट एक तरीके से नहीं सोचते, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। विद इन कास्ट भी आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, राइट, विद इन कास्ट भी आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। दे विल सी दैट सपोज दिस C3 caste, they think that this political party is good one, they will vote for them. This C2 thinks this political party P1 is good, वो उनको वोट करेंगे। But it is when they will think of this, when they are illiterate, when they are educated, they will find the best one to be as a representative. सर, एजुकेशन में ज़्यादा होता था कास्ट सर्कल में, right? So I hope that this caste in politics is clear to all of you, right? Yes. यस यस सर। Yes, sir. Any doubt anyone has? सर पॉलिटिक्स इन कास्ट नहीं समझ आ रहा। अभी ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया, मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है। अब होता क्या है, जब मैं ये दोनों पढ़ा लूँ, ये वाला पोर्शन तो हो गया, अब ये भी मैं जब पढ़ा दूंगा तब मैं बताऊंगा कि बच्चे जो क्या करते थे, दे यूज्ड टू राइट पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट इन पॉलिटिक्स, और कास्ट इन पॉलिटिक्स के पॉइंट इसमें लिख देते थे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते थे। दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट क्या होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। टोटली याद आँख बंद करके याद करते थे,
किसी का पॉइंट किसी में, किसी का पॉइंट किसी में, और घर आके कहते थे कि हमने तो सारा क्वेश्चन सही किया है और नंबर नहीं मिलता था फिर। ठीक है। सो कास्ट इन पॉलिटिक्स, आई होप 3 पॉइंट ऐसे थे जो कि फेवर कर रहे थे और 5 पॉइंट ऐसे हैं, 5 या 4 हैं, 4 पॉइंट है, चलो उसको 4-5 जो भी मान लो, 4 बैलेंस दिए होंगे एनसीईआरटी में, और वो क्या करते हैं उसके अगेंस्ट, राइट, जो उसको पूरी तरीके से फेवर नहीं करते हैं, ऐसे कहा जाए। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो अब इसके बाद जब नेक्स्ट देखोगे तो यू विल कम टू पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है? पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब देखोगे कि यहाँ पे ये कहा जाएगा कि भाई जो डिफरेंट कास्ट हैं, इन ऑर्डर टू बी इन पावर दे विल कम टुगेदर। कास्ट, सपोज कोई कास्ट C1 है तो वो अपने बगल वाले कास्ट को देखेंगे C2, C3 जो उन्हीं के जैसे हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे भाई हम लोग अगर अकेले अकेले रहेंगे तो पावर में नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है। एक साथ आके फिर क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और अपने लोगों को ही वोट करके जिता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, different castes are coming together in order to be in power, and in other words we can say that it is politics in caste। समझ में आ रहा है? क्योंकि it is all about power। समझ में आई बात? यस सर। सर एक बार दोबारा तो सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने ये कहा कि सपोज C1 इज अ कास्ट, फिर एक सब कास्ट है C2, फिर एक कास्ट है C3। They think that if they will be alone, they will not be able to come to the power, because they are in minority, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसे देखा जाए कि माइनॉरिटी में है, वो पावर में नहीं आ सकते, so what they will go for a coalition or a kind of alliance। coalition और alliance तो जानते हो ना, तो कहेंगे अगर हम लोग एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी में हो जाएंगे। We will be in majority, and when we will be in majority, then definitely we are going to win election. Our representative will win this नहीं कह रहे हैं ना। हाँ, so in one way or the other, you can say can have a alliance kind of। मेरा वैसे एक डाउट है सर इसमें। वेट करो जब तक कंप्लीट नहीं हो। ओके सर। सर ये कोलिशन कास्ट के बीच में या फिर उनकी पार्टी के बीच में? ये कास्ट के बीच में है ना, कास्ट के बेसिस पे हो रहा है ना। अब कास्ट ही पॉलिटिकल पार्टी ही पूरी तरीके से कास्ट के बेसिस पे बनी है, तो हो सकता है उनके बीच में। बट देखा जाए तो इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी अलोन खड़े होकर ये नहीं कहते कि हम सीधे सीधे एक ही कास्ट को हमारा वोट चाहिए और हम जो है इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहेगी। वो कहेंगे कि हमें अदर कास्ट का भी वोट चाहिए, ठीक है, हमें विभिन्न का भी वोट चाहिए, हमें जो है कि अदर रिलीजन का भी वोट चाहिए, क्योंकि वोट जितना ज़्यादा वोट मिलेगा उतना ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, जीतने के बढ़ेंगे। जीतने के चांसेस ज़्यादा। यस सर। वो हारने के लिए थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, ठीक है। तो अब इस तरीके से देखोगे तो पब्लिक अरीना में 2 तरह के कास्ट आते हैं, फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपके कास्ट दिखेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड कास्ट में मतलब वो लोग जो पहले से क्या है, एडवांटेजेस हैं और प्रिविलेज हैं, वो आगे एक साथ मिलके, तो फॉरवर्ड कास्ट। बैकवर्ड जो कि इधर टू इलिटरेटेड, वो बैकवर्ड कास्ट में आ गए। तो दिस इज द काइंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यही है क्या, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो अब जब कास्ट को हमने, अब एक बच्चा कह रहा था कि सर ये कास्ट को अगर हम पॉलिटिक्स में दिखाते हैं तो इसका एक अच्छा इफेक्ट होगा या नेगेटिव, अच्छा इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जेंडर के केस में पॉजिटिव होता है, रिलीजन अगर आप दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से ज़्यादा तो आप वो नेगेटिव होता है। जेंडर पॉजिटिव होगा, रिलीजन नेगेटिव होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू कास्ट, ठीक है, अगर आप कास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो पॉलिटिक्स में, देन इट विल हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कोनोटेशन। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होगा। सब वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि जैसे कि
किसी कास्ट के लिए अगर आप कह रहे हो कि वो कास्ट जो है कि इल ट्रीटमेंट उसको मिलता है, सोशली एक्सक्लूडेड है, वल्नरेबल है, ठीक है, और उसके लिए आप जो है कि कुछ प्रोविजन बनाना चाहते हो, तो वो प्रोविजन बनाइए, उस कास्ट का अपलिफ्टमेंट होगा, सोसाइटी से इनइक्वालिटी हटेगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का, जो कि सही है और होना भी चाहिए। एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री यू शुड फॉलो दिस, ठीक है। Yes. अगर आप हमेशा कास्ट को ही बोलते रहते हो, कास्ट 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 कास्ट, बाकी चीजों को छोड़ दिया आपने, ठीक है, ओनली यू आर कंसर्न्ड विद कास्ट, देन इट विल हैव अ नेगेटिव कंसीक्वेंस। हर बात पे कास्ट को ही रख देना क्या है, नेगेटिव है पॉलिटिक्स, ऐसा नेगेटिव है। ठीक है। सर तो इट नेगेटिव विल हैव पार्टीज बोथ और कंट्रीज दोनों के लिए ना। नेगेटिव फॉर कंट्री एंड पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स और कंट्री ऑब्वियसली, पॉलिटिक्स इज ऑल, जैसा पॉलिटिक्स आप करोगे वैसे कंट्री का ओवरऑल क्या होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, डेवलपमेंट होगा। यस सर। यस चलो, ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर, ये यस सर, क्लियर क्लियर। यस सर। ठीक है, तो सर सर डाउट आप पूछ सकते हैं सर, रीडिंग पोर्शन। वेट करो, मैं देखना चाहता हूँ। कविश, टर्न ऑफ योर माइक, जो चुना चैप्टर कंप्लीट है ज़ैद। क्यों आप लोग बीच में बात कर रहे हो, क्लास चल रही है तो? मैंने मना किया है ना, क्लास में बात नहीं करते। सर बात नहीं कर रहे थे सर, वो बीच में एक बच्चे का माइक ऑन हुआ था, उसी का बोल रही थी। जय सौरन, यस सर। नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होना चाहिए, सर आपने राइट? तो शायद कुछ टॉपिक पढ़ा रहे थे जब लिखा था मैंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ये सर डाउट पूछ लूं? सर आपका माइक जो है ऑफ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, हाँ। आती है। यस डाउट बताओ, डाउट क्या है? यस सर। तो मेरा एक डाउट है सर, आपने जब वो सर आपने पढ़ा रहे थे सर C1 C2 आपने रिलीजन बनाए थे और कहा था कि एक तरह से गठबंधन बना देते हैं, सर वो कैसे होता है और क्या उसका कोई एग्जांपल है? C1 को गठबंधन बना देते हैं, एग्जाम्पल इन द सेंस कि आप डिफरेंट कास्ट को आप देख सकते हो कि वो पावर में आने के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ठीक है। अब आप कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज आप देख सकते हो कि जो पावर में आने के लिए कोई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं जो 2-4 कास्ट 5 कास्ट के साथ मिलकर क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और पावर में आते हैं, राइट। अब मैं एक्सक्लूसिवली मतलब कास्ट देखो, तो अब उसमें जब ये आप कहते हो एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यू नीड टू सर्च फॉर दिस कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 2-4 कास्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करके, या 2-4 कास्ट उसमें ज़्यादा डोमिनेंट हैं और वो जाके पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर कास्ट अकेले अकेले रहेंगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, अगर जब तक वो एक साथ ना आए। तो जब एक साथ आ रहे हैं तभी तो कोलिशन हुआ, तभी तो अलायंस हुआ। यस सर। सर आप बताते हो ना सर, आवाज नहीं सुनते सर मेजॉरिटी की, सर आप बता रहे थे इसलिए वो साथ में मिलके कि हमारी आवाज भी सुने, सर वैसा ही कुछ? मेजॉरिटी की आवाज़ नहीं सुनते का इन द सेंस कि वो मेजॉरिटी में रहना चाहते हैं ताकि वो भी जीत सके इलेक्शन, वो भी पावर में आ सके। अदरवाइज अलग अलग रहेंगे तो पावर में नहीं आ पाएंगे। मार्जिनलाइज लोगों के लिए ज़्यादा ही वर्क होना लगेगा और फिर उनका छूट जाएगा, वो जो है कि एकदम अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे लोग, जो है कि वेमेन पे, SC पे, ST पे जो है ज़्यादा फोकस करके एक तरफा एक पार्ट जो है कि क्या कर जाएंगे, इलेक्शन जीतते चले जाएंगे। काउंटर करने के लिए, ठीक है, एक अलग से जो है कि तरीका अपनाया गया, और ये ट्रू है दोनों साइड के लिए, ठीक है। एनी अदर डाउट? मैंने चैट बॉक्स में डाला है। चैट में सर शायद जैद ने पूछा। कौन है ये? जैद। जैद ने क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ पेक्यूलियर क्या होगा इसका मतलब?
पेक्यूलियर का मतलब इसको आप मान लो कि क्या कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, विचित्र, अजीब, राइट? समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो। सर सर एक क्वेश्चन था कि जैसे जो हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिक्स में कास्ट इंक्लूड हो रहा है, और सर कास्ट में भी मतलब पॉलिटिक्स इंक्लूड हो रहा है, जिसकी वजह से कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ रहे हैं, जैसे कि मतलब मैनिफेस्टो में भी कास्ट अगर इंक्लूड हो रहा है और कुछ जगह पावर में भी। तो सर जब ये हमें पता चल रहा है तो इसको मतलब रूल आउट करने के लिए कोई लॉ या फिर सर कोई स्कीम सर कुछ नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, इसमें रूल आउट करने के लिए प्रॉब्लम, देखो मैंने क्या कहा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। इफ इट इज डन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देन इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में जिसको कि ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और उसको ठीक उस तरीके से किया जाए कि ताकि प्रॉब्लम एक्यूट और भी अदर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अदर्स को प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर रहेंगे, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो रूल आउट यही है कि इट्स ऑल अबाउट, इट इज अप टू द पॉलिटिकल पार्टी नाउ, ठीक है, हाउ दे आर टेकिंग द थिंग्स एंड हाउ दे आर लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। ठीक है, और आपको मालूम होगा पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा उनके पीछे जो उनका बैकएंड होता है, उनका बैकअप होता है, वो होता है किसका? ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पढ़ा है? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। यस सर पढ़ा है। तो अब ये वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही आईएएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से हम चीज़ों को रूल आउट करें, किस तरीके से चीज़ों को फ्रेम करें ताकि कंट्री का डेवलपमेंट भी होता रहे और सभी को एकोमोडेशन भी मिलता है। राइट? ओके सर। दोज हु आर इन पावर पर्टिकुलरली। हालांकि देखा जाए तो हर पॉलिटिशियन, क्योंकि अब पॉलिटिशियन का तो कुछ यहाँ पे ऐसा सच है नहीं कि आप इतना एजुकेटेड हो तो पॉलिटिशियन बनोगे, नहीं हो तो नहीं बनोगे, राइट? तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बैकएंड में होते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो सर। कोई आउट है किसी का? आई थिंक एक गर्ल चाइल्ड है जिन्होंने कहा था कि एट द एंड शी विल डिस्कस। सो एनी डाउट you have? Okay, it's Jyotsna. Yes, Okay, Jyotsna, you can ask. सर आपने सर कास्ट एंड पॉलिटिक्स में सर अनटचेबिलिटी जब पढ़ाया था तो सर आपने बोला था कि रूरल एरिया में सर लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी करते हैं सर रिलीजियस के मीडियम पर। तो सर मैं बस यही पूछना चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है, तो सर रूरल एरिया में लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कैसे कराया जाए? मतलब सर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है कि उनके लोगों को सर कुछ अवेयर हो इस चीज़ के बारे में? गवर्नमेंट ने तो लोगों को अवेयर किया है। गांव के जो प्रधान है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है? हैं। आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है ना, तो प्रधान को आप वोट कर रहे हो, पर जो है कि सरपंच, प्रधान वही सरपंच हुआ, फिर पंच को वोट करते हो, तो दे ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दे आर देयर फॉर फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ for the overall management of the village, and state government is giving a lot of money in order to do so. ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। Now, as they are the representatives of people at the village level, they have the sole responsibility to look after the management, to look after the implementation of constitution in an effective and efficient manner. समझ में आ रही है बात? लोगों ने उनको इलेक्ट किया है ना कि आप डिसीजन लो मेरे बिहाफ पे। डेमोक्रेसी में क्या है? Final decision should be taken by those who are elected by the people. As you are as for the people. तो जब वो इलेक्ट होकर आप आए हो तो this is your sole responsibility to make people aware of what should be done and what should not be done. What is Article 17 and what is not. So means this is up to the प्रधान। अब फिर उसके बाद प्रधान के साथ और किसके पास है? Who else can make changes in society? Teachers can play a vital role. ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू बिकॉज आई नो दिस, आई एम मेकिंग यू अवेयर। ठीक है, सो टीचर्स जो गांव में पढ़ाते हैं उनको पास भी वही ज्ञान होना चाहिए। उसी तरीके से वो भी क्या करें, उसका ज्ञान को क्या करें,
बांटे। तो जितना ज़्यादा ज्ञान बटेगा, जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर होगा, उतनी ज़्यादा जो अवेयरनेस बढ़ेगी और फिर ये प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। यस सर। सर जैसा सर कहते हैं ज्ञान सबके पास होना चाहिए सर, इंडिया में कहते थे ना। आई होप दैट जोशना यू हैव गॉट योर आंसर, राइट? यस अदर मीन्स भी है, मैंने 2 ही बताए हैं। चलो लेट्स हैव अ रीडिंग कौन करेगा? लेट मी नो, रेज योर हैंड। Krishna Sharma and Zaid. Let me see who else are here. How many people are here? So Krishna, Zaid and Manas. Manas कहाँ थे 2 दिन तक? सर कल तो मेरी सर क्लास थी और सर अभी भी सर 7:30 पे ओवर हुई है, तो मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। यस चलो कृष्णा पढ़ो। यस सर। सर येट से ना? Caste in politics. Okay, sir. As in the case of communism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole base of social community. According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests, which they do not share with anyone from another caste. As we saw in the caste of communism, such as belief is not born out by our experience. Caste is not aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most inappropriate aspect. Caste can take various forms in politics. First, when part when parties choose candidates in elections, they keep in mind Underline करो. These are all important for exam. they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as the muster necessary support to win elections. When governments are formed, political party usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. सब पढ़ दिया। Yes sir. Next one. Zaid Soran. Zaid Soran. Yes, sir. Political parties and candidates to election make appeal to caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some castes and are seen as their representatives. Second, universal adult franchise and the principle of one person, one vote compelled political leader to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consequences among the people of castes that they are hitherto treated as inferior and low. The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. This is far from true. Just consider this. No parliament constituency in the country has a clear majority of one single caste. So every candidate and party need to win the confidence of more than one caste and community to win election. Second, no parties win the votes of all the voters of a caste or community. When people say that is a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. Third, many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. Fourth, the ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose election in our country that uh, could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. Clearly, while caste matters in electoral politics, so do many other factors. The voter have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their
caste or community. People within the same caste or community have different interests. Yes, Jayat, continue. Caste community. People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. Rich and poor, or men or women from the same caste, often vote very differently. People assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leader matter and are often decisive in elections. So I hope this much is clear to all of you, right? यस सर आपने यही Yes, तो sir. बताया था। ठीक है, मैंने आपको उतना सारा ही बताया है जितना आपकी किताब में है, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताया गया है। ठीक है, यस तो आई होप क्लियर है सभी को। तो नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिटिक्स इन कास्ट, राइट? तो पॉलिटिक्स इन कास्ट कौन पढ़ेगा? आई थिंक मानस वाज द नेक्स्ट वन, राइट मानस? Yes, sir. यस रीड करो। Politics in caste. We have so far looked at what caste does to politics, but it does not mean that there is only a one-way relation between caste and politics. Politics too influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. Thus, it is not politics that gets caste-ridden, it is the caste that gets politicized. This takes several forms. Each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring castes or subcastes which were earlier excluded from it. Various caste groups are required to Okay, do enter one into thing, everyone out there, you should underline this, that it is not politics that gets caste ridden. ठीक है, it is the caste that get politicized. Mark it important. Right. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स को कास्ट नहीं चला रहा है, ये कास्ट है जो पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, जिसपे राजनीति की जाती है और या पॉलिटिसाइज किया जाता है। यस मानस, कंटिन्यू। Yes, sir. Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring castes or subcastes which were earlier excluded from it. Various caste groups are required to enter into a coalition with other castes or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. Thus, caste plays different kinds of role in politics. In some situations, expression of caste differences in politics give many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBCs caste to gain better access to decision making. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against Underline particular all these things. cases. Okay. Yes Manas, continue. Okay. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular castes for more dignity and more access to land, resources, and opportunities. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well, as in the case of the religion. Politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy. It can divert the attention from other pressing issues like poverty, development, and corruption. In some Underline castes, करो, ये सब underline करो, that yes, if you will always do caste in politics, then it will have some negative consequences. You cannot go for other developmental activity which is very essential for the development of the country, right? yes, sir. In some cases, caste division leads to tensions, conflict, and even violence. I hope this chapter is clear to all of you. Gender, religion, and Yes, caste. sir. यस सर क्लियर है Clear है? Okay. Before going ahead, let us move towards the pictures which are given over here, right? So what you need to do, you need to just go through that pictures once from your end, and you will definitely, though you will not find a question based on this in your board examination, but can expect a question from here in NTSC, because NTSC it is not well defined that what they will ask, as it is a competition. So it is up to the question setter, right? Question framer, that what he or she wants यस children to write.
राइट और नो। तो आप लोग डिफरेंट जो इसमें फिगर्स हैं उसको अच्छे से देख कर आइए, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज और प्रॉब्लमेटिक देन डू लेट मी नो, राइट। Yes, sir. Any doubt anyone has in this? No, sir. No. So in this way, we have completed a very important chapter, gender, religion, and caste. Right? A issue which is not only restricted to books only. Okay. Now let us move to the next. Yes, yes. Jay is saying something, I think. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना? क्या? नेक्स्ट चैप्टर. Next chapter. Okay, wait. Let me see which chapter we need to start. अभी आप लोग बताओ कि आपका phase 2 में कौन से chapter बच रहे हैं. You let me know first. सर आई थिंक सर सारे हो चुके हैं टर्म 1 Yes, के लिए. तो फिर रिवीजन स्टार्ट करें सर। हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर का कर दिया था सर, अब सिविक्स के स्टार्ट फर्स्ट से। I think we need to start political parties, right? Yes, sir. ये तो वो भी सही है। Political parties is also a chapter, and I think this is important for your. Yes, sir. Yes, sir. So political party. सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज आपने इनके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप जानते भी होंगे, न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत देखते भी होंगे. सो यू Yes, मस्ट हैव sir. सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, what political Yes, parties sir. are all about, what they are, what the ultimate goal of political parties are. So Yes. here we will learn, though we are not starting this chapter exclusively over here, but I will just like to give a brief of this. So political parties, as you know that politics is all about power. So different political parties will definitely contest election in order to be in power, right? So you must have studied this in your earlier classes also, that it is their career. If they want, if they will not serve people, they will not be able to secure votes or muster support for themselves, and will not be able to will not be in power. ठीक है, तो पावर में रहने के लिए they will do social welfare, they will do the developmental activity which is required for the overall development of the society. For an example, socio-economic development is one of among them, right? And it is an important part. तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यू विल फाइंड दैट इन इंडिया वी डोंट हैव वन पार्टी सिस्टम भी नहीं है. We do not have one party system, we do not have two party system, rather we have a multi party system. ठीक है, हम लोगों के पास क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम. Here you will find multiple parties are working, right? And with Yes, sir, different competing. different perspective and ideology. तो हम लोग डिफरेंट Yes. पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझेंगे, उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में समझेंगे, and we will see the challenges in front of these political parties, what sort of challenges we can see, and what are the reforms we can suggest in these political parties. Yes, ठीक है, sir. challenges हम देखेंगे क्या challenges हैं, whether they are trying to improve themselves or they are just be trying to be in power in somehow or the other. ठीक है, और is there any influence of money and muscles power, और फिर हम देखेंगे क्या डायनेस्टिक सक्सेशन चला आ रहा है या डायनेस्टी रूल चला आ रहा है, right? Whether they are propounding democracy all over India. Suppose we are concerned about India because as we are Indians, so they are propounding development of India, right? A democratic India, a strong democracy they are looking for. But whether they are following democracy within their own party or not, whether they have their own sort of constitution or not, whether those who are at the lower strata of the political party are able to come to the upper strata or not. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में, यही देखेंगे और पढ़ेंगे, और हमें क्या करना है, इसी को समझना है, और बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा डाउट है सर जनरल वाला। बोलो क्या जनरल वाला डाउट है. यस सर। सर मेरा ये डाउट है सर, हम ऑपोजिशन पार्टी पढ़ते हैं सर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम शुरू करने वाले हैं सर, उसमें ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। तो सर कई बार बात होती है ऑपोजिशन पार्टी के बारे में कि वो हर चीज में अपोज करती रहती है। तो सर उनको वो सपोर्ट नहीं करती ना शायद। मैंने सर मेरी दीदी भी सर हिस्ट्री का थोड़ा मतलब ज्योग्राफी में है सर, उन्होंने बताया था कि हर चीज में उन्हें अपोज करना उनका काम होता है। सर ऐसा कुछ होता है सही में? नाम क्या है उनका पॉलिटिकल पार्टी का?
ये तो जो जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं सर, रुको किसी रुको भी चीज की। वेट, अभी मैंने जो नाम पूछा है वो नाम बताओ। जो पार्टी की बात कर रहे हो, ऑपोजिशन पार्टी बोला है आपने। यस ऑपोजिशन का क्या मतलब होता है? सर, अपोज करना। अपोज करना, ठीक है। तो व्हाटसोएवर यू विल ब्रिंग आउट दे विल अपोज। दिस इज देयर वेरी ड्यूटी टू अपोज। अपोज क्यों किया जा रहा है? अपोज करने से क्या फायदा हो रहा है? अपोज करने के वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये फायदा होगा कि जो पब्लिक लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी देख रही है, उनको पता चलेगा कि हमारे कंसर्न्स को ये अपोजिशन पार्टी क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। अच्छा कंसर्न रेज कर रहे हैं, बुरा कंसर्न रेज कर रहे हैं, वो भी पॉइंट आउट होगा। साथ ही साथ हर काम में, हर कोई भी काम करते हो तो उसमें लूप होल जरूर होता है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी का काम ये होता है कि उस लूप होल को समझे, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में उसको बताएं और उसको सही करवाने की कोशिश करें। यस सर। यस तो सर। ये इसका नेगेटिव कंसिक्वेंस नहीं है, इसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस है। तो जो रूलिंग पार्टी है दे शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव message from opposition party, यस सर। and opposition party play a very vital role in the working of यस the सर। सर ये पढ़ा है सर, मैं ये नहीं पूछ रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ विदाउट पॉइंट्स तो नहीं कर सकते ना सर? विदाउट पॉइंट्स मतलब? मैंने क्या कहा? जब मैंने हर बात का जवाब दिया है आपके इसमें, यस। मोर और लेस। मैंने जब ये कहा कि हर काम में अगर आप लूप होल खोजना चाहो तो लूप होल मिलेगा, यस सर। ठीक है। तो जब लूप होल मिलेगा तो वो लूप होल को पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या जो पावर में है, उनको ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। देखना चाहिए क्या ये लूप होल लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, और अगर कर रही है, सही है, तो आप उसको सही करिए। यस सर। और सर एक बस एक और क्वेश्चन सर, ऑपोजिशन पार्टी जो होती है सर, वो अप्रिशिएट नहीं कर सकती सर रूलिंग गवर्नमेंट को? रूलिंग गवर्नमेंट को अप्रिसिएट क्यों नहीं कर सकते? अप्रिसिएट करते हुए उनमें उसमें लूप होल खोजेंगे वो, ओके ठीक है। सर। अप्रिसिएट करेंगे और उसमें फिर लूप होल खोजेंगे। दिस इज अ डिप्लोमेसी। मैंने क्योंकि देखा नहीं है ना अभी तक ऐसी कोई पार्टी जो। अभी आपने बहुत चीज नहीं देखी है बच्चे, तो बहुत चीज देखना है, ठीक है। तो आप ये धीरे धीरे जब और पढ़ोगे तो देखोगे कि लोग कैसे जो है, पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स हुआ कि जो पावर में है उनको क्या किया, उनका थोड़ा सा प्रेस करके फिर उनका जो है क्या किया, उनके लूप होल्स, उनकी कमियों को बताया, प्रेज किया। तो इसमें ये भी होगा कि आपने अच्छा किया तो अच्छा कह रहे, पर जो बुरा है उसको भी अच्छा करो। ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। यस। थैंक यू सर। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, विद दिस पॉलिटिकल यस। पार्टीज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद गुड दिस। नाइट सर। बाय सर। थैंक यू थैंक सर। यू गुड सर। नाइट सर। बाय सर, गुड थैंक नाइट। यू सर। Bye, sir. Thank थैंक you, यू। sir. बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय एवरीवन।